ಪ್ರಿಯವಾದ ದೇವರ ಜನರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದಾವರ್ತೆ ತನ್ನಂಥ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ಆತನ ಚರಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಭೂಪರಲೋಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದಂಥ ಯೆಹೋವನೇ, ನಿನ್ನ ಮಗನ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾಗಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಕರ್ತನೇ, ಕಳೆದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀನು ನಮಗೆ ಕಾಪಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕೇಡುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದಿ. ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವಾಗ ಯೆಹೋವನೇ, ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ದೇವರಾತ್ಮನೇ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದು ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ ನಿನಗೆ ಸತ್ಯತ್ವದಲ್ಲಿ ಆರಾಧಿಸುವ ಹಾಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಆರಾಧನೆ ಮುಖಾಂತರ ನೀನೇ ಘನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಕೋ. ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯೇಸುವಿನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಆಮೇನ್. ಪ್ರಿಯರ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ 30ನೇ ಕೀರ್ತನೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಕ್ಕಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವಿಲ್ read Psalm 30 as responsive reading. भजन संहिता 30वां अध्याय उत्तर प्रत्युत्तर के रूप में हम पढ़ेंगे. Psalm 30 as responsive reading. हे यहोवा, मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया. है मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया. है यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है. तूने मुझको जीवित रखा और कब्र में पड़ने से बचाया है. है यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो. क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है. कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुँचेगा. मैंने तो अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं टलने का. है यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था. जब तूने अपना मुख फेर लिया तब मैं घबरा गया. है यहोवा, मैंने तुझी को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ाकर यह विनती की कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लोह से क्या लाभ होगा. क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? है यहोवा, सुन, मुझ पर अनुग्रह कर. है यहोवा, तू मेरा सहायक हो. तूने मेरे लिए विलाप का नृत्य में बदल डाला. तूने मेरा टाट उतरवाकर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है. आखिरी वचन हम साथ पढ़ेंगे. ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो. है मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूँगा. ಆಮೇನ್. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆದ ನಂತರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ परलोक प्रार्थना ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. आइए हम अपनी सिरों को झुकाकर प्रार्थना करेंगे. प्रार्थना के पश्चात हम सारे लोग मिलकर परमेश्वर ने सिखाई हुई प्रार्थना, स्वर की प्रार्थना कहेंगे. We'll all bow down our heads. We'll look to the Lord in prayer. After the prayer, we'll say the Lord's Prayer together. Shall we pray? ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತೆ ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ತಂದೆಯೇ, ನೀನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ನಿನ್ನ ಚಲನೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ನಾವು ನಿಜವಾಗಲೂ ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ತಂದೆ, ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನೀನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ನಮಗೆ ಜೀವಿಸುವರ ಸಂಖ್ಯೆದಲ್ಲಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಎಣಿವಿಕೆ ಜೀವಿಸುವರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ
ನೀನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ತಲೆಗಳನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ನಿನ್ನ ಚರಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೊರೆಗಳನ್ನು ಇಡ್ತಿರುವಾಗ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತಂದೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ತನಕ ನಡೆಸಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ನಡೆಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಸಭೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ನೀನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರು. ಈ ಸಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬದ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಏರಳವಾದ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಸುರಿಸಿ ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಡುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸು, ಅಂಧಕಾರದ ಬಂಧನಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸು, ಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸು, ರೋಗಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸು. ನಿನ್ನ ಜನರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡು ಇರುವ ಹಾಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಅವರ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕೊಡು. ದೇವರಾತ್ಮನೇ ಅವರ ಮನೆಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಅವರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ದೇವರ ಮುಖದ ಬೆಳಕನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಿಯವಾದವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಅವರ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ದೇವದೂತರೇ ಕಾವಲುಗಾರಗಿಟ್ಟು ಈ ನಿನ್ನ ಪ್ರಿಯವಾದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಡೆಸು. ಕರ್ತನೆ, ನಿನ್ನ ಚರಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ, ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನೀನು ನಮಗೋಸ್ಕರ ವಿಧ ವಿಧವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಪರಲೋಕದ ಬಾಧ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ. ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಯ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕರ್ತನೆ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಹಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಚಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಈ ದೇಶವನ್ನು ಆಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ಕರ್ತನೆ, ಅವರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಬುದ್ಧಿ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದನುಸಾರವಾಗಿ ಅವರು ಈ ದೇಶವನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಆಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡು ಸ್ವಾಮಿ. ಕರ್ತನೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸೇವಕರಿಗೋಸ್ಕರ, ಸೇವೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ, ಸಭೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೀನೇ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನ ತುಂಬುವಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ನಡೆಸು. ನಿನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ಬಲವನ್ನು ನೀಡು ಸ್ವಾಮಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನು ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗಿ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಕರ್ತನೆ, ಈ ಮೆಥಡಿಸ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಭಿಕರು, ಸಭಾಪಾಲಕರು, DS ಗಳು, ಬಿಷಪ್ಸ್ರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮೇಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಿನಗೋಸ್ಕರ ದುಡಿಯುವ ಹಾಗೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಅವರಿಗೆ ರೂಪಿಸು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಂಬೈ ರೀಜನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ನೇತೃತ್ವ ಕೊಡುವಂಥ ನಮ್ಮ ಬಿಷಪ್ ಸಾಬ್ರು, ಮೇಡಮ್, ಇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. ಈ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸು ಸ್ವಾಮಿ. ಈ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿಷಪ್ ಸಾಬ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಬುದ್ಧಿ, ಜ್ಞಾನ, ಬಲ, ಶಕ್ತಿ, ನಿನ್ನ ಆತ್ಮನ ನಡೆಸುವಿಕೆಯಿಂದ ನೀನೇ ನಡೆಸು. ಇವರಿಗೆ ದೈವಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದನುಸಾರವಾಗಿ ಇವರು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುಂಬೈ ರೀಜನಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಿಂದ ನೇತೃತ್ವ ಕೊಡುವ ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಸಹಾಯವನ್ನು ನೀಡು. ಕರ್ತನೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಆವರ್ತೆ ಈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮರ್ಪಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ನಾಮದ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸಿ ನೀನೇ ನಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಘನತೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಯೇಸುವಿನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ಪರಲೋಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಪರಲೋಕದ ತಂದೆ, ನಿನ್ನ ನಾಮ ಪರಿಶುದ್ಧಪಡಲಿ, ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ಬರಲಿ,
ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತ ಪರಲೋಕದ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿ. ನಮ್ಮ ಅನುದಿನದ ಆಹಾರ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿಕೊಡು. ನಮಗೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ ಕ್ಷಮಿಸಂತೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ನಮ್ಮನ್ನು ಶೋಧಿಸುವಂತೆ ಕೇಡುಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸು. ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜ್ಯವು ಬಲವು ಮಹಿಮೆ ಸದಾಕಾಲ ನೀವೇ ಸ್ವಾಮಿ. ಆಮೇನ್. ಪ್ರಿಯವಾದ ದೇವರ ಜನರೇ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಭಾಗ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯೆರೆಮೀಯನ ಗ್ರಂಥ 31ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 31ರಿಂದ 34ನೇ ವಚನವರೆಗೆ. ಯೆರೆಮೀಯನ ಗ್ರಂಥ 31ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 31ರಿಂದ 34ನೇ ವಚನವರೆಗೆ. In the Old Testament, the reading is taken from book of Jeremiah, chapter 31, verse 31 to 34. Jeremiah 31, 31 to 34. यिर्मयाह का किताब 31वां अध्याय 31वें वचन से लेकर 34 वचन तक पुराना नियम का पाठ होगा. ಅದಾದಮೇಲೆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಲೊಸ್ಸೆಯವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ರಿಂದ 14ನೇ ವಚನವರೆಗೆ. ಕೊಲೊಸ್ಸೆಯವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 12ರಿಂದ 14ನೇ ವಚನ. In the New Testament, the reading will be taken from Colossians chapter 1, verses 12 to 14. Colossians 1, 12 to 14. कोलोस्सियों को लिखा पत्र उसका पहला अध्याय 12 से 14 वचन तक नया नियम का पाठ होगा. पहले हम पुराने नियम के पाठ पढ़ेंगे. हले ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಭಾಗವನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. फिर यहोवा की यह भी वाणी है, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घराने से नई वाचा बांधूंगा. वह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके पुरखों से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया. क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली. परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वो ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे. यहोवा की यह वाणी है. और तब उन्हें फिर एक दूसरे से यह कहना ना पड़ेगा कि यहोवा को जानो, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि छोटे से लेकर बड़े तक सब के सब मेरा ज्ञान रखेंगे, क्योंकि मैं उनका अधर्म क्षमा करूंगा और उनका पाप फिर स्मरण ना करूंगा. परमेश्वर पढ़े भागों को आशीषित करें. Colossians chapter 1 verses 12 to 14. नए नियम का भाग कोलोस्सियों को लिखा पत्र उसका पहला अध्याय 12 से 14 वचन तक. Giving thanks to the Father who has qualified us to share in the inheritance of the saints in light. For he rescued us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of his beloved Son, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. May the good God add his blessings upon the reading of the portion. Amen. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ನೀಡೋಣ. देवरा वाक्यಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. आइए हम इस समय परमेश्वर के वचनों का मनन करेंगे. परमेश्वर के वचनों की मनन से पहले एक छोटी सी प्रार्थना हम करेंगे. प्रिय प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं और इस समय हम सारे लोग आपके पवित्र चरणों में हमारे सिरों को झुकाकर आपसे विनती करते हैं. प्रभु, आपके वचनों में से हमें ज्ञात करा कि हम किस तरह हमारे जीवन को व्यतीत करें और किस तरह आप हमसे संतुष्ट होते रहेंगे. धन्यवाद करते हुए पवित्र आत्मा परमेश्वर आप ही को सारा मान महिमा देते हुए ये प्रार्थना यीशु नाज़री के नाम में मांगते हैं. आमेन. ಪ್ರಿಯವಾದವರೇ, ಈ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಲೂ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ದುಃಖದಲ್ಲಿ, ಭಯದಲ್ಲಿ
ಅಸಮಾಧಾನದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಆ ಒಂದು ಸಂಕಟದಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತಾ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು अगत्य. प्रियो, हम आज के इस समय में जहाँ पर दुख है, वेदनाएं हैं, संकट है, अलग अलग रीति की परेशानियां हैं जिससे हम गुजर रहे हैं, डर का माहौल बना हुआ है. ऐसे माहौल में भी कितना उचित होगा यदि हम परमेश्वर को हर दिन हर पल उसको धन्यवाद करते रहेंगे, उसकी महिमा करते रहेंगे. अगर हम जैसे कुलिस्सियों को लिखा पत्र में अगर देखते हैं तो वहाँ पर पौलुस 5 विषय हम सभी से कहता है. 5 विषय के लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद करना बहुत ज़रूरी है. अगर हम पुराने नियम का जो भाग हम लोगों ने पढ़ा, उस भाग के जरिए अगर हम देखें तो और अधिक हम परमेश्वर के इस तरह कह सकते हैं कि हम उसके ऋण में हैं या वो हम पर अनुग्रह किया है. परमेश्वर स्वयं यिर्मयाह के जरिए कहता है कि मैं तुमसे वाचा बांधूंगा, उन लोगों से वाचा बांधूंगा, इजरायलियों से, यहूदियों से, यानी कि सारा मानव जाति से वाचा बांधूंगा. और वो वाचा कैसा होगा कि उनको वापस या वो फिर से उन्हें खुशी, संतुष्टि और जय ये दिलाएगा या ये देगा. और कहता है कि उसके वचनों को हमारे हृदय पर लिखवाएगा या लिखेगा. प्रियो, ये परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है. और क्योंकि वो प्यार करता है इसीलिए वो चाहता है कि हम उसके करीब रहे, हम उसके ऋणी हैं. वो हमारा पिता है. देखिए आज का, जैसे मैंने वर्णन किया आज का माहौल के बारे में, आज के माहौल में अगर आप और मैं सुन रहे हैं, देख रहे हैं या हम जीवित हैं तो ये उसकी अपार प्यार का नतीजा है या उसका अनुग्रह हम पर है. कितने सारे लोगों को ये दिन देखने का मौका नहीं मिला. कुछ लोग परमेश्वर के बुलाहट को स्वीकार करते हुए चले भी गए, और हम बचे हुए लोग हैं. हमसे परमेश्वर की अपेक्षा या उम्मीद कुछ और है. तो इसीलिए ज़रूरी है कि उन विषयों को जाने और प्रभु को धन्यवाद करते रहें. पौलुस कहता है कि हर काल में, हर समय में परमेश्वर की धन्यवाद करते रहना ज़रूरी है, क्योंकि हर विषय उसकी योजना से होती है. चाहे हमारे जीवन में अच्छा हो, बुरा हो, जो कुछ हम महसूस करते हैं, वो सारे विषय को परमेश्वर हमारे जीवन में करवाता है, ताकि हम इन सारे विषयों से आगे निकलते चले. यदि हमारे जीवन में बुराई होता है तो हम परमेश्वर को कोसते हैं, हम रोते हैं. लेकिन प्रियो, ये जान लो कि अगर हमारे जीवन में बुराई भी होता है तो कहीं ना कहीं परमेश्वर की योजना में वो हमारे लिए अच्छा ही ठहरता है, या हमारे जीवन में वो बड़ा कार्य करने के लिए इंतज़ार करता होगा, रुका होगा. यदि हम इन 5 विषयों के बारे में जो कुलिस्सियों को लिखा पत्र के जरिए हमें देखना है तो इस तरह है. देखिए, पहली बात, हम परमेश्वर को इसलिए धन्यवाद करना चाहिए जो कुलिस्सियों का 1 अध्याय का 12 वचन में लिखा गया है कि वो हमें
संतों के बीच या पवित्र जनों के बीच या हमें अनंतकालीन में प्रवेश करने के लिए वो हमें काबिलियत दिया है, या हमें वो नियुक्त किया है, या वो हमें उस स्थान में प्रस्थान करने के लिए या उसके साथ हमेशा रहने के लिए हमें वो चुना है। इसलिए धन्यवाद करना है उसे। अगर हम पत्रस के पहला पत्रस उसका पहला अध्याय में भी पढ़ेंगे, 3, 4, 22, 23, इन वचनों में परमेश्वर हम सारे लोगों को ये कहता है कि वो उसके अपार प्यार में या अनुग्रह में हमें वो एक आशा हमारे जीवन में उत्पन्न किया है, और हमारे लिए वो प्रभु ने स्वर्गलोक में स्थान तैयार किया है। देखिए, हम जिस धरती पर रह रहे हैं इसमें हमारे आयुष्य को, हमारे समय को सीमित किया गया है। हम यहाँ हमारी मर्जी से जब तक रहना चाहते तब तक हम रह नहीं सकते। वचनों में लिखा गया है कि परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के दिन को सीमित किया है, गिना है, और हर एक जीवित प्राणी, हर एक मनुष्य आज नहीं तो कल उसे मरना है। ये सच्चाई है। हम कोई हमेशा के लिए रहने वाले लोग यहाँ पर नहीं हैं, और हमारे मृत्यु के पश्चात हम इस स्थान को छोड़कर जाने के बाद प्रियो, हमारे लिए एक नया स्थान है जहां पर हमें वापस मौत नहीं मिलेगा। हम जीवित रहेंगे, अनंतकालीन के लिए जीवित रहेंगे। वो परमेश्वर की योजना है। यहाँ पर हम केवल कुछ काल के लिए, कुछ समय के लिए हैं, लेकिन परमेश्वर के राज्य में हम हमेशा के लिए रहेंगे। ये परमेश्वर हमारे लिए दिया है, या ये परमेश्वर हमारे लिए बनाया है। इसीलिए हम परमेश्वर धन्यवाद करना चाहिए कि प्रत्येकों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर ने स्वर्ग में जाने के लिए हमें उसने राह बना कर दिया है। या हम इस तरह कह सकते हैं कि परमेश्वर ने मुझे स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए या अनंतकाल में प्रवेश करने के लिए योग्य ठहराया है। यह हर एक विश्वासियों को इसे जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर हम सभी को आशीषित किया है यीशु के नाम में, और हम सभी को उसके मृत्यु से, उसके पुनरुत्थान से हमारे अपराधों को क्षमा करते हुए हमें सिद्ध किया है कि हम स्वर्ग लोग जाएं। दूसरा विषय, हम परमेश्वर को धन्यवाद इसलिए भी करना है क्योंकि वो हमें अंधकार के बंधनों से छुड़ाया है। अंधकार के बंधनों से छूटना ये आसान बात नहीं है। शैतानी ताकतों से बाहर निकलना ये आसान बात नहीं है। शैतान के सामने हम टिक नहीं पाएंगे, लेकिन वो प्रभु, उसके सामर्थ, उसका अनुग्रह, उसका ताकत, उसकी उपस्थिति से हम सारे लोगों को इतना बलवान बना दिया, इतना सामर्थ्यवान बना दिया कि हम अंधकार के बंधनों से छुटकारा पाए हैं, और शैतानी ताकतें हम पर हावी हो नहीं सकता। अगर आप वचनों में पढ़ेंगे तो वचनों में इस तरह लिखा है, रोमियो का लिखा पत्र उसका 16 और 17 के पाप का जो इस तरह लिखा कि हम सारे लोग पापी हैं, हमने पाप अपराध किया है। और पहला यूहन्ना उसका तीसरा अध्याय और चौथा वचन में इस तरह है कि पाप वो
परमेश्वर के विरुद्ध जाना, यानी कि परमेश्वर के आज्ञा का उल्लंघन करना, वही पाप है। और इससे हम बच नहीं सकते, क्योंकि हम सारे लोग हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जो कि परमेश्वर की दृष्टि में बहुत अच्छा हो। हम लोगों ने हर बार, हर समय परमेश्वर के प्यार को लज्जित किया है, परमेश्वर के अपार प्रेम को हम न समझे नहीं हैं। इसीलिए परमेश्वर को धन्यवाद करना है कि हमारे इतने खामियां होने के बावजूद भी वो हमें अंधकार की ताकतों से, शैतानी ताकतों से उसने हमें बचाया है। तीसरा हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने हम सभी को, जैसे मैंने कहा, स्वर्ग के लिए सिद्ध किया। जैसे मैंने कहा कि अंधकार की बंधनों से हमें छुड़ाया है। तीसरा हम ये देखते हैं कोलोसियों को लिखा पत्र, उसका पहला अध्याय 13वां वचन का दूसरा भाग, हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने उसके प्रेम में हम सारे लोगों को उसके बेटे के राज में परिवर्तित किया है। हमें ईश्वर के जरिए, ईश्वर के लिए हम सारे लोगों को परमेश्वर ने परिवर्तित कर चुका है। देखिए दुनिया में कितने सारे लोग हैं, कितने सारे धर्म हैं, जातियां हैं, लेकिन उन सारे इसमें से आपको वो चुना है, मुझे वो चुना है। इतने सारे भीड़ में अगर वो हमको चुनकर हमें मोहर लगाया है कि ये मेरा व्यक्ति है, ये मेरे स्थान में रहेगा, बाइबल कहती है कि हमें वो उसके राज्य में, उसके राज्य के लोग, जबकि हम धरती पर अभी हैं, तो उसके राज्य के लोग हमें वो कहता है, या हमें वो उस सील को या उस दर्जा को हमें दिया है कि हम इस पृथ्वी पर रहने के बावजूद भी स्वर्ग के हम लोग हैं। इस पृथ्वी का यात्रा संपन्न करके, समाप्त करके, हम स्वर्ग की हमारे लिए तैयार किया गया नगर है, पवित्र नगर, पवित्र भवन, और उसमें हम प्रवेश करेंगे। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करना है। चौथा, परमेश्वर को हम इसलिए धन्यवाद करना है क्योंकि उसने हम सारे मानव जाति के लिए, हम सारे लोगों के लिए यीशु के लहू के द्वारा हमें शुद्ध किया है। देखिए, जैसे परमेश्वर के नियम अनुसार अगर हम देखें तो अगर पुराने नियम में हमारे अपराधों से हमें क्षमा अगर हमें चाहिए तो परमेश्वर के पास यज्ञ करना होता था, बलि अर्पण देना होता था, और हर बार हम पाप करते, बलि अर्पण देते, ये सिलसिला कभी रुकता नहीं था। और ऐसे करने से भी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता था। इसीलिए परमेश्वर ने उसकी बड़ी योजना में, उसकी महान योजना में स्वयं को ही बेटा बनाकर या पुत्र बनाकर या मनुष्य का पुत्र बनाकर, इंसान बनाकर उस पवित्र मेमने को, उस पवित्र परमेश्वर को उसने इस धरती पर उतारा, लाया, और उसके ऊपर हम सारे लोगों का, इस धरती के हर एक लोगों का पाप
उसके ऊपर लादा। परमेश्वर स्वयं अपने ऊपर हमारे गुनाहों को लेकर वंस फॉर ऑल एक ही साथ गए हुए पीढ़ी, उस समय का पीढ़ी, आने वाला पीढ़ी, इन सारे लोगों के लिए, सारा मानव जाति के लिए, जो पैदा हुए थे, जो पैदा हुए हैं, जो पैदा होने वाले हैं, उन सारे लोगों के लिए परमेश्वर ने अपना पवित्र लहू बहाकर हमें निष्पाप या हमें पवित्र ठहरने के लिए मार्ग सिद्ध किया। हमें केवल हमारे अपराधों को उसके सामने कबूलना है, इतना आसान कर दिया। हमें वो, हमारे पास ये रास्ता नहीं है अभी कि हम जाकर हमारे हर एक दिन में कितने पाप करते हैं, हमारे सोच से, हमारे विचार से, हमारे बातों से, हमारे कृत्यों से, इन सारे पापों के लिए हमें अब किसी पशु का बलि देना जरूरी नहीं है, क्योंकि पवित्र पशु, पवित्र मेमना, वो हमारे लिए अपना लहू बहा चुका है। केवल हमारा यही काम है कि हम चाहकर अपराध ना करें। अगर हमसे अपराध होती है या अपराध होने के बाद हमें अगर समझ आता है, तो उस पवित्र परमेश्वर के पास जाकर हमारे अपराधों का क्षमा मांगना, उसके सन्निधान में हमारे प्रार्थनाओं को रखना, पश्चाताप की प्रार्थनाओं को रखना, बस इतना ही है और ज़्यादा कुछ नहीं। हमें जैसे दूसरे धर्म के लोग जो अब तक नहीं समझे सच्चाई को, वे लोग कितना यत्न करते हैं, कितना प्रयास करते हैं अपने जीवन को पाप मुक्त करने के लिए या मोक्ष पाने के लिए, आपको पता है। लेकिन इस परमेश्वर के बच्चे होने के बाद यदि गलती भी हो जाती है तो ये स्वीकार करने के लिए अपने बाहें फैलाकर वो इंतज़ार करते रहता है। हम बस उसके पास जाकर हमारे अपराधों को कबूले तो ये परमेश्वर हमारे अपराधों का क्षमा करता है, ये वचन कहती है, परमेश्वर के वचन में लिखा गया है। इसीलिए हम इस परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद करते रहना चाहिए कि ये ऐसा मौका भी बनाया हमें कि पवित्र लहू यीशु के हमारे ऊपर उसके छिड़काव हर दिन वो करता है, जिससे हम पवित्र जीवन व्यतीत करने में सक्षम हो सकते हैं। और परमेश्वर को धन्यवाद करना इसलिए भी ज़रूरी है कि जैसे मैंने कहा कि हमारे अपराधों को वंस फॉर ऑल एक ही साथ क्षमा किया, यीशु के लहू के द्वारा हमें छुटकारा दिया। इतना ही नहीं, हर दिन, हर पल, हर समय वो हमें हमारे लिए ऐसा व्यवस्था कर चुका है कि हमें क्षमा मिलती रहे, या हमें हमारे अपराधों से यीशु के द्वारा क्षमा प्राप्त होता रहे। ये मुमकिन है। आज आप कितने बड़े अपराध क्यों ना किए हो, आपने या मैंने इस दुनिया के नापदंड से अगर देखे, जो भयंकर से भयंकर भी अपराध जिसको लोग बहुत ही बुरा चीज कहते हैं, बहुत ही बुरा कहते हैं, उसका मूल्य या उससे छुटकारा इस दुनिया के नापदंड से देखे तो मौत है। अगर आपने किसी का खून किया है और आप पकड़े गए तो उसका बदला क्या है? आपको मौत दिया जाएगा। यदि आपने भयंकर अपराध इस दुनिया की दृष्टि के अनुसार
आपने किया है, तो भी उसका आपको मौत से, आपके जीवन को छोड़ने से या आपका मरने से उस अपराध को या उस अपराध के बदले में चुकाना पड़ता है। लेकिन यीशु के पास, परमेश्वर के पास, चाहे अपराध छोटा हो या हमारी या दुनिया की दृष्टि में बड़ी से बड़ी अपराध हो, वो प्रभु यीशु मसीह के पास हम जाकर यदि क्षमा मांगे तो वो क्षमा करता है। लेकिन इस बात का भी ध्यान रहे कि जानबूझकर हर बार अपराध करना ये परमेश्वर को गवारा नहीं है। परमेश्वर से उस व्यक्ति को जो जानबूझकर समझ होने के बावजूद भी अपराध पे अपराध करता जाता है, तो उसकी क्षमा नहीं है। लेकिन यदि गलती से हमारे हाथों से अपराध होता है या हम गलती से परमेश्वर के विरुद्ध जाते हैं और जैसे हमें ज्ञात होता है वैसे हम परमेश्वर के पास फिर दौड़े, तो वो हमारे पिता बनकर वो हमें स्वीकारता है, वो हमें क्षमा करता है। इन सारे बातों के लिए हमें धन्यवाद करते रहना है। हम धन्यवाद करते रहेंगे परमेश्वर की। अब हाल ही में देखिए, इस महामारी के समय में, इस वातावरण में, यदि आप और मैं जी रहे हैं, जिंदा हैं, तो ये सोचिए कि कितना बड़ा उपकार परमेश्वर ने आपके ऊपर किया है। कितने सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको समझ भी नहीं आया कि उन्हें क्या हुआ है और वो मर गए। और ऐसे भी लोग हैं जो इस महामारी के जपेटे में आ गए और वहां से परमेश्वर ने उन्हें वापस उठाया, मौत के मुंह से बाहर निकाला। दुर्भाग्य की बात भी ये भी है कि कुछ लोगों को परमेश्वर ने मौत में सुलाया या मौत दिया। लेकिन सारी चीज़ों के पीछे परमेश्वर की योजना है, उसका प्यार है। प्रियो, हम इस परमेश्वर को हर एक विषय के लिए उसे धन्यवाद करना ज़रूरी है। देखिए, अभी इतने दिन लॉकडाउन के, उसके बाद गवर्नमेंट ने परमिशन दिया कि हम प्रार्थनालय को वापस जाएं या हम आराधना कर सकते हैं। हालांकि उनका कुछ गाइडलाइंस है, लेकिन परमेश्वर ने हम सारे लोगों को वापस मंदिर में आने के लिए मौका दे रहा है। उसकी आराधना उसके पवित्र भवन में करने के लिए हमें मौका दे रहा है। इस बात के लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद करना है। We need to thank God for each and everything which He has been doing in our lives. Our lives should be a thankful life for God, because He is the ultimate. He is the ultimate. He is the only. And because of Him, we are. Because of His love, we are. Because of His grace, we are. इसीलिए ज़रूरी है कि प्रभु को धन्यवाद करते रहे। परमेश्वर आपको आशीषित करे। ಆಮೇನ್। ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ ಭವಿಷ್ಯ ನಾವು ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಚರ್ಚಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ। ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಆಫಿಷಿಯಲ್ ನೋಟಿಸ್ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ। ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ DS ಸಾಬ್ರಾಗಲಿ ಬಿಷಪ್ ಸಾಬ್ರಾಗಲಿ ಇನ್ನೂ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ। ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಾನು ನೋಟಿಸನ್ನು ವಾಟ್ಸಪ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೇನೆ। ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ದಯಮಾಡಿ ನೀವು
ಮುಂದಿನ ವಾರದಿಂದ ಚರ್ಚ್ ಚಾಲು ಆಯ್ತಂದರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧಿಸೋಣ. ಈ ಆರಾಧನೆ ಆದಮೇಲೆ ದಯಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಆನ್ಲೈನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಟೈತ್ಗಳನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ನೀವು ದೇವರ ಬಾಕ್ಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ಟ್ರೆಷರರ್ ಸ್ಟೀಫನ್ ಗೌಡರ್ ಇವರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಂಥ ಜನರ ಹೆಸರನ್ನು ಓದ್ತೇನೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರೀಸ್, ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬರ್ತ್ಡೇ ಸಾಂಗನ್ನು ಹಾಡಿ ಇವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸೋಣ. ಈ ದಿನ ಬರ್ತ್ಡೇಸ್ ದಿಸ್ ವೀಕ್, ಟುಡೇ 15 ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಮಾರ್ಕ್, ರೆಬೆಕಾ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಿನ್ಗೆ. 16 ಸುಗಂಧ ರಾಜು ಮಾಳೆ. 19 ಕುಂಜನ್ ಸೊಲೊಮೋನ್ ಆಶಾಪುರೆ. 20th ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ ಸ್ಯಾಮ್ವೆಲ್ ಗುಂಜಳ್ಳಿ. 21st ರ್ಯಾನ್ ರಾಬಿನ್ ಹಿರೇಕೆರೂರ್. ಇವರು ತಮ್ಮ ಬರ್ತ್ಡೇಸ್ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರೀಸ್ 20ನೇ ತಾರೀಕು 20th ಮಿಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲಿಶಾ ಸ್ಯಾಮ್ವೆಲ್ ಕೊನಸಾಗರ್. ಅಗೇನ್ ಆನ್ 20th ಮಿಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ವಿ ಕೆರ್ವಿನ್ ಕುಪ್ಪ. ಇವರು ತಮ್ಮ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರೀಸನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ತ್ಡೇಸ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸಾಂಗ್ ಹಾಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಡಿಯರ್ ಆಲ್, ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟು ಯು. ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ, ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೈವಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು निಮಗೆ दयापालिसली. प्रार्थना मारना. आइए हम प्रार्थना करें. इन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जो अपनी जन्मदिन को मना रहे हैं, जो अपनी शादी की सालगिरह इस सप्ताह में मना रहे हैं, और उसी तरह उन प्रिय लोगों को जो परमेश्वर की स्पर्श की जिनको आवश्यकता है, उनको भी परमेश्वर के समक्ष में हम रखेंगे, प्रार्थना करेंगे. परम प्रधान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं. आपने हम सभी को ये मौका दिया कि हम आपके वचनों को मनन करें और आपके वचनों के अनुसार पिता आज हमें फिर एक बार आपने ज्ञात करवाया कि हम हमेशा आपको धन्यवाद देते रहने वाले व्यक्ति बन सके. पिता, आपके उपकारों को कुछ समय हम भूल जाते हैं, लेकिन फिर वापस आप हमें मौका देते हैं कि हमें उन विषयों को याद करें. पिता, इस समय हम उन सारे विषयों को याद करते हुए हम सारे लोग आपको धन्यवाद करते हैं, और इस समय विशेषकर इन प्रियजनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं जो अपनी जन्मदिन सप्ताह मना रहे हैं. पिता, आपके अनुग्रह डॉक्टर इमैनुअल मार्क, रेबेका प्रकाश मिंगे, सुगंधा राजू माळे, कुंजन सोलोमन आशापुरे, क्रिस्टिना सैमुअल गुंजड़ी, रैन रॉबिन हिरेकेरूर, इनके ऊपर होने दे. ये प्रियजनों को इनके जीवन के हर क्षेत्र में आपकी सहायता, आपकी उपस्थिति रखे. जैसे ये प्रियजन अपने जीवन के नए वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं, विनती करते प्रभु कि इनके जीवन में आपकी कार्य होते रहे, आसमानी आशीषों को इनके जीवन में उतारे, इनके आने जाने, इनके हर एक क्रिया में आपकी उपस्थिति रखे, ताकि प्रियजन आपको हमेशा महिमा देते रहे. पिता, विशेषकर रैन के लिए प्रार्थना करते हैं, इस बच्चे को आशीषित करें. इस शारीरिक रीति से बढ़ते समय मानसिक और आत्मिक रीति में बढ़ सके ऐसे अनुग्रह कर. उसी तरह प्रार्थना करते हैं
उन प्रियजनों के लिए जो अपनी शादी की सालगिरह इस सप्ताह में मना रहे हैं। पिता, आपके अनुग्रह मिसेस एंड मिस्टर अलीशा कोनेसागर इनके जीवन में हो। उसी तरह मिसेस एंड डॉक्टर मैथ्यू केरविन कुप्पा इनके परिवार में हो। इन परिवारों को पिता आशीष करें, इनके जीवनों को संवारे और होने दे प्रभु की ये प्रियजन अपने परिवार में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सके, उसके आशीषों को पा सके। पिता, अंधकार की शक्तियों को, शैतानी ताकतों को इन परिवारों से दूर रखे और इन्हें एक दूसरे के प्रति परमेश्वर के प्रेम में ये लोग बंधे रहें, ऐसे अनुग्रह करें। इनके बच्चों को आशीर्वादित करें प्रभु, इनके बच्चों को बुद्धि ज्ञान बल शक्ति में बढ़ाए और इनके घरों को आप सुरक्षित रखें। उसी तरह प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के सदस्यों के लिए जो बीमार अवस्था में है, जो बलहीनता में है। पिता, उनको आपका स्पर्श दे, आपकी चंगाई की हाथ उनके ऊपर रखे। पूरी आंटी के लिए प्रार्थना करते हैं, लोबो आंटी के लिए प्रार्थना करते हैं, अर्थर आंटी के लिए प्रार्थना करते हैं, भाई मार्टिन अर्थर के लिए प्रार्थना करते हैं, सुतार आंटी के लिए प्रार्थना करते हैं और जोएल बहन इस बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं। इन सारे लोगों को पिता आप छूकर चंगाई दीजिए। उसी तरह प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के दूसरे सदस्यों के लिए जिनका ज्ञात हम लोगों को शायद नहीं है। पिता, यदि वे बीमार है, यदि वे संकट में है, यदि वे बुरी परिस्थिति में है, तो इस समय आप उन्हें छू लें, चंगाई प्रदान करें, उनकी परिस्थितियों को बदले। फिर एक बार पिता, इस सवेरे के समय हम आपको धन्यवाद करते हुए आपसे विनती करते हैं, जो दान आपके बच्चे इस आराधना के बाद जमा करेंगे, पिता उस दान के ऊपर आपकी आशीष हो, उस दान को आप बढ़ाएं, आपके राज्य के विस्तार के लिए उपयोग हो। और प्रार्थना करते प्रभु कि यदि अगले सप्ताह आराधनालय खुलता है तो प्रभु हम सभी को योग्य ठहरा कि हम तेरी मंदिर में आकर तेरी आराधना कर सकें। धन्यवाद करते हुए सारा मान महिमा गौरव आप ही को देते हुए प्रार्थना यीशु नाज़री के नाम में मांगते हैं, आमेन। ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಕೃಪೆ, ತಂದೆಯಾದ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ, ಪರಿಶುದ್ಧಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹ ಸಹವಾಸ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಎಂದಿಗೂ ನೆಲೆಯಾಗಿರಲಿ, ಆಮೇನ್। ದೇವರು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ, ಆಮೇನ್।